Good morning, students. Today I will explain you chapter number 11 Indian Judiciary of Civics in class 9th Social Science. Okay, as you are knowing this that final exams are coming nearby you. Okay, and you have to prepare all the chapters, and this is the chapter which comes in your final exam having the most important weightage and more important for your final exam. Okay, so in this video I will explain you just the exercise and clear it out your doubts, and you can revise it, you can learn it out, you can repeat it out again and again while looking after this video. I hope so this will be helpful for your final exam revision. Okay dear students, let's begin. As you know, in exercise first question is totally related to short. Okay, और शॉर्ट क्वेश्चन से रिलेटेड फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों. फर्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू व्हाट the qualification of a Supreme Court judge you have to write. Okay, it states the required qualification for being appointed as the judge of the Supreme Court. This is the first question of your short. Okay, now what you will write, as they are asking about the qualification, what you require for the Supreme Court judge. अगर आपको सुप्रीम कोर्ट के जज बनना है, ठीक है, तो उसके लिए आपको क्वालिफिकेशन क्या चाहिए अगर आपको उस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए अपॉइंट होना है तो. फर्स्ट पॉइंट, ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया. ही और शी जो भी सुप्रीम कोर्ट का जज बनना चाहते हैं, they want to be appointed as a Supreme Court judge, they must be first citizen of India. Second, retirement age of the Supreme Court judge is 65 years. He should have served as a High Court judge in India for minimum 5 years. Third quality, that is he must be served. उन्होंने हाई कोर्ट के जज के बेस पे वर्क किया हो 5 years at least in India, not in any other country. Okay. Fifth point, he should have experience of at least 10 years as an advocate in any Indian high court. Okay. And the last but not the least, he should be distinguished judge or well-known jurist in the opinion of the Prime President of India. वो पर्टिकुलरली डिस्टिंग्विश्ड जज मीन्स फेम नेम वेल नोन ज्यूरिस्ट होना चाहिए, वेल नोन एडवोकेट होना चाहिए, वेल नोन जज होना चाहिए बिकॉज ऑफ हिज वर्क नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, एंड दिस ऑल नॉलेज एक्सपीरियंस एंड work experience should be known by the President of India. These are the particular qualification which we require for the judge of the Supreme Court. Now another short question that is there in your exercise, that is state the powers under the original jurisdiction of the Supreme Court. As you know, this is the powers. Okay, there are four powers and jurisdictions of the Supreme Court. 4 points are there. Explain in your textbook. One is original jurisdiction. Second is appellate jurisdiction. Third is adversary jurisdiction. And the fourth point, which is there in your powers of the jurisdiction of the Supreme Court, is other jurisdiction. Okay, but in this question only they had explained you, tell you to mention the original jurisdiction, means original jurisdiction powers and responsibility which are handled by Supreme Court only, which are that powers and which are the responsibilities and duties that you have to explain on this answer. First, the power held by the Supreme Court to hear a matter brought to it directly without preceding any other lower court is called the original jurisdiction of the Supreme Court. Original jurisdiction का मीनिंग क्या है? फर्स्ट यू अंडरस्टैंड दैट पावर्स जो भी सुप्रीम कोर्ट के पास है means that is there that they will directly hear that matters which are belong to him only, that will not go in the lower courts or in any high court, just directly come to the particularly appealed in the Supreme Court only. जो मैटर्स, जो प्रॉब्लम्स ऐसे जो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट हैंडल करता है उसको सुप्रीम कोर्ट ओरिजिनल जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है. दिस इज द मीनिंग विच यू हैव टू राइट इन योर आंसर, विच इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू राइट. Okay, under this the Supreme Court has the following authority. Now what are the authority?
They have the particularly to hear the cases between the government of India and one or more state. Particularly they can hear, they can sort it out the problems between the government of India and one of or more states. एक स्टेट के बीच में या ज़्यादा स्टेट्स के बीच में, दोनों के बीच में अगर प्रॉब्लम है तो वो ये केसेस को सॉल्व करेंगे. सेकेंड, टू हियर एंड रिजॉल्व डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियंस, फाइट्स एंड कन्फ्लिक्ट्स between the government of India, one or more states on the other side, and one or more the other state. Means फर्स्ट पॉइंट में क्या था, गवर्नमेंट, वन मोर स्टेट और मोर स्टेट्स. ओके, सेकेंड पॉइंट में तीन पार्ट बना दिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वन एंड मोर स्टेट्स, वन और मोर स्टेट्स. मीन्स थ्री ग्रुप विल बी देयर. ओके, देन टू हियर एंड प्रोवाइड जजमेंट रिगार्डिंग डिस्प्यूट्स बिटवीन डिफरेंट स्टेट्स. जो भी प्रॉब्लम्स या डिस्प्यूट्स हो रहे हैं, यानी जहाँ पे अंडरस्टैंडिंग में नहीं हो रही है, देर आर पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स विच आर नॉट अकॉर्डिंग टू देम, तो उस डिस्प्यूट्स को कौन सुनेगा, सुप्रीम कोर्ट सुनेगा. टू ईयर केसेस रिलेटेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द मैटर्स रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो. सेंट्रल गवर्नमेंट के केसेस को भी वो हैंडल करते हैं, प्लस कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करते हैं. देन द सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो हैज़ द पावर टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन ऑफ इंडिया. सेकेंड थिंग, सुप्रीम कोर्ट के पास पावर्स है कि वो उन्हें प्रोटेक्ट भी करना है, उन्हें प्रिजर्व भी करना है हमारे फंडामेंटल राइट्स जो एवरी सिटीजन को दिए गए हैं इंडिया में. नॉट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, it is also empowered to issue rights like habeas corpus, mandamus, prohibition, criteria and quo warranted. ये सब ऑर्डर्स हैं, ये जो इमीडिएट बेसिस या सिचुएशन कंडीशन बेस पे लिए जाते हैं बाय द सुप्रीम कोर्ट, एंड दैट आर ऑल्सो, this is one type of orders which are given by the Supreme Court only. Okay, I hope so. The second question is also cleared and very much helpful to you for the revision. Now third question, that is describe matters that are found that are not that are out of the jurisdiction of the Supreme Court. ऐसे कौन से मैटर्स है जो सुप्रीम कोर्ट नहीं मीन्स हैंडल करता. ठीक है, मैटर रिलेटेड टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिवर वाटर बिटवीन स्टेट्स. अगर कोई भी मैटर जो भी है कि वाटर कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा स्टेट टू स्टेट में, स्टेट्स के बीच में, states do not come under the original jurisdiction of the Supreme Court. This will not included. Okay, ये included नहीं है वाटर डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिवर वाटर का जो मैटर है वो कोई के भी बीच में हो, स्टेट का स्टेट के बीच में हो, स्टेट्स के साथ स्टेट हो, या स्टेट्स के बीच में हो, ये कंसिडर नहीं होता. ये ओरिजिनल जुडिडिक्शन में मैटर हैंडल नहीं किया जाता बाय द सुप्रीम कोर्ट. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट. अब ये प्रोसेस इम्पीचमेंट का एक्सप्लेन करना है ये क्वेश्चन में. व्हाट इज इम्पीचमेंट? फर्स्ट यू हैव टू एक्सप्लेन दैट. द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अ सुप्रीम कोर्ट जज फ्रॉम हिज पोस्ट इन केस he is found guilty, incapable, inefficient, involved in some misconduct is called impeachment of the Supreme Court judge. Impeachment of Supreme Court judge का मतलब एक particularly कंडीशन है, मीन्स जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का जज पर्टिकुलरली पाया जाता है. मीन्स दिस इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अ सुप्रीम कोर्ट जज. एक प्रोसेस है, एक पर्टिकुलर वे आउट है कि कैसे आप सुप्रीम कोर्ट के जज को अपनी पोस्ट से हटा सकते हो. व्हाट आर द पर्टिकुलर थिंग्स विच यू हैव टू कीप इन योर माइंड. फर्स्ट, अगर वो गिल्टी पाया जाता है, इनकैपेबल है अपने काम में, मीन्स इफ ही इज फाउंड एनी टाइप ऑफ इनकैपेबिलिटी इन हिज वर्क, इनएफिशिएंट, वर्क इज नॉट डन ऑन टाइम, इन्वॉल्व इन सम मिसकंडक्ट, प्रॉपरली वर्कआउट नहीं किया, फॉल्ट पर्टिकुलरली फॉल्ट किए हैं, एरर्स क्रिएट किए हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट किए हैं, तो इस टाइम पीरियड पे अगर वो पाया जाता है अपने काम के प्रति प्रॉपर वर्कआउट नहीं करता, तो उसको पर्टिकुलर ये सिचुएशन के बेस पे इम्पीचमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जज के टर्म पे उसको निकाला जा सकता है. अब द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट इज डन अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. हमें ये पता चला कि ये बंदा पर्टिकुलरली गलत काम कर रहा है,
या इसने प्रॉपर वर्कआउट नहीं किया है सुप्रीम कोर्ट के जज ने, ठीक है। तो अब इसको निकालने का प्रोसीजर क्या है, स्टेप्स क्या है, प्रॉपर मेथड क्या है। सबसे पहले ये जो प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट है वो किया जाता है अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जो भी प्रोविजंस हमारे हैं कॉन्स्टिट्यूशन में किए उसके अकॉर्डिंग ही हम उसे निकाल सकते हैं। द प्रोसेस इज डन बाय द पार्लियामेंट एंड दिस प्रोसेस इज डन बाय द पार्लियामेंट and it is called impeachment motion in the parliament process. Okay, ये जब पर्टिकुलरली इम्पीचमेंट प्रोसेस जो है वो कहाँ की जाती है, पार्लियामेंट, इसलिए इसका नाम इम्पीचमेंट मोशन इन पार्लियामेंट प्रोसेस कहा जाता है। द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट इज कंडक्ट इन द पार्लियामेंट ओनली। मीन्स ये प्रॉपर इम्पीचमेंट का जो भी प्रोसेस है वो कहाँ कंडक्ट किया जाता है, पार्लियामेंट में। द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इन विच द केस इज चार्ज इनिशिएटेड द प्रोसेस by taking the consent of the majority of the total member and 2/3 member present in voting in each session। जब हाउस ऑफ पार्लियामेंट में, ठीक है, चार्जेस इनिशिएट किए जाते हैं, ये प्रोसेस पूरा वर्कआउट किया जाता है, तब टोटल 2/3 मेंबर्स को प्रेजेंट होना है और वो ईच सेशन में 2/3 मेंबर्स शुड बी प्रेजेंट इन द पर्टिकुलर इम्पीचमेंट प्रोसेस के टाइम पे, प्लस वोटिंग भी ईच सेशन के टाइम पे की जाएगी। द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट स्टडीज एंड इंक्वायरीज द चार्जेस। और उसके नाउ रेस्ट ऑफ द अदर क्वेश्चंस, अदर particularly questions I will explain you in another video. Okay, hope this 5 questions will be helpful you to in your exam and revision work. Please subscribe my channel, and if it is fruitful, please like it, comment it, and subscribe my channel. Hope for the best and all the best for your revision work. Bye. Have a nice day.